Hey guys, so this weekend I went to Sector 17 to talk to some strangers and I saw this really pretty looking girl. She happened to be from Himachal, but not only that, she turned out to be my senior in Punjab University. She told me she wanted to go to Europe for MS, but that plan didn't work out. I applied for MS and I got admission in Uppsala University. It's in Sweden. Okay. Somehow my parents they denied. उन्होंने ये कहा कि बाहर जाएंगे तो maybe बिगड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। बिगड़ना तो फिर यहाँ काफी था. We had a candid conversation about Himachal, and I was really shocked to know about some of the things that she said. हिमाचल में थोड़ा कास्टिज्म बहुत है. हाँ. थोड़ा नहीं बहुत है वहाँ पे बहुत है Tell me about it. कास्टिज्म. तो शादियों में क्या होता है कि जो लोग कास्ट के होते हैं SC/ST कैटेगरीज को उनको अलग खाना दिया जाता है और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको अलग जगह खाना दिया जाता है. मतलब छूना नहीं चाहिए उनका खाना. उसमें बेसिक She also told me about the stuff that happens behind the scenes in college fests. एक तो हमारे को ग्राउंड लेवल पे बहुत कम पैसा मिलता था. तो अगर आपको फेस्ट कराना तो आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए. हाँ. तो लाया जाता था वो भी पता नहीं कहाँ जाता था. कई बार ऐसे भी अच्छा ऐसा भी होता है. था. And later, she also told me about dating scene in Chandigarh, which according to her sucks. मेरा डेटिंग का मतलब है आप जा रहे हो बंदे को मिल रहे हो आप बातचीत कर रहे हो आप एक दूसरे को समझ रहे हो. बेसिकली यहाँ डेट का मतलब नहीं है कि आप पहले दिन गए expect something, you know? So I hope you really like the video. Keep watching. So where you from? So I'm from Shimla, but my ancestor home is in Tattapani. Just What? it's 2 hours away from Shimla, basically. So I've been born and brought up in Shimla, Okay. basically. Yeah. So then I done my engineering from UIT, Punjab University. Oh, you went to UIT. I went to UIT. Okay. I've done my engineering in biotechnology. Okay. And after that, I started my own event management company, and then I started Okay. doing social media strategy and everything. So you didn't venture into any engineering role? I applied for MS and I got admission in Uppsala University. It's in Sweden. Okay. But somehow my parents they denied. That's very bad, dude. Like you're getting a chance to Yeah. go to Sweden and Europe. I still for have it. that admission form and everything that I have to go there and a badge that I have to stick to my luggage and everything. But then I didn't because my parents denied. So like they denied at the last moment or what? Yeah, they knew from the beginning that I am going to apply for MS. हाँ. But I don't know what happened. They said कि no. क्योंकि वो पहले ही बोल देते ना नहीं करना है तो नहीं, तुम I've been नहीं doing करते. research work. I've been doing, I've been board members of lot of committees, and at the end they did this. I don't know why. Maybe my relatives influenced them somehow. काफी हरामी रिलेटिव्स हैं तुम्हारे. उन्होंने ये कहा कि बाहर जाएंगे तो maybe बिगड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी. बिगड़ना तो फिर यहाँ काफी था, बट उनको वो भी था. मौली यही की था. बिगड़ी हुई थी मतलब उनको यही था कि बिगड़ तो नहीं जाएगी. उनको ये था कि क्यों जा रही है बेसिकली. क्यों जा रही है मतलब फॉर करियर राइट. For career, right? And then I'm a girl. You have Sorry, I forgot your name. I didn't tell you my name. I'm Arveer. I'm Divya Bhardwaj. दिव्या भारद्वाज. भारद्वाज. Okay. मेरी एक दोस्त थी चंबा से. तो शी यूज्ड टू से कि लाइक वो ना सबसे ऊपर वाले पंडित हैं. तुम्हारा भी ऐसा कुछ सीन है क्या? I'm a सबसे- Bhardwaj though. हाँ. बट हिमाचल में थोड़ा कास्टिज्म बहुत है. हाँ. थोड़ा नहीं बहुत है. बहुत है वहाँ पे. बहुत है Tell me about it. casteism. और वहाँ पे बेसिकली जो लोग कास्ट के लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से. कौन से कास्ट के लोग होंगे? SC/ST हाँ. तो नहीं प्रॉब्लम होता है हाँ. बिकॉज उनको सोसाइटी में रहने देते हैं. हाँ. तो वो ऐसे बिल्कुल कैसे बोलूँ मैं. क्या क्या क्या? ओके विद इट. दे They're okay with the discrimination. दे आर ओके विद. What do you mean? Like what kind of discrimination people? अब जैसे शादियाँ होती हैं वहाँ पे हाँ. तो जैसे भारद्वाज हो गया या कास्ट के कोई हाँ. बेसिकली जनरल कैटेगरी. हाँ. तो शादियों में क्या होता है कि जो लोग कास्ट के होते हैं SC/ST कैटेगरीज को उनको अलग खाना दिया जाता है. अलग ऐसा जगह होता है पे. क्या? हाँ. और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको अलग जगह खाना दिया हाँ. जाता है. मतलब छूना नहीं चाहिए उनका अच्छा, खाना. उसमें अच्छा, बेसिकली ये बहुत है. आप अपर बट शादी में जरूर आना. हाँ आप अपर साइड जाओगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कितनी कास्टिज्म है. वहाँ तो Okay. बहुत ही है. अच्छा. तो वहाँ पे तो आई थिंक मैंने सुना है रिसेंटली. हाँ. आई विल नॉट से द नेम ऑफ द यूट्यूबर. Okay. बट उसने अपनी शादी में बेसिकली जो लोअर कास्ट वाले उनको हाँ. अलग दिन बुलाया था. अच्छा यूट्यूबर है. तुम भी ऐसे करती हो? नहीं हम बिल्कुल ही नहीं. बट एक डेकोरम बना हुआ है जो आपको फॉलो करना ही पड़ता है. अच्छा. ये तो आपको सोसाइटी भी नहीं बेसिकली आपको ऑस्ट्रेसाइज कर देंगे. निकाल देते हैं आपको हाँ. कि मतलब
या तो तो चले- शादी तो बहुत दूर की बात है, मतलब हाँ तो काफी दूर ही हो गया। शादी तो नहीं वहाँ पे नहीं होती, नहीं कर सकते। बट तुम्हें सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर इन पंजाब? 9 years। 9 years। तो यहाँ पे तुम्हें डिफरेंसेस लगते हैं कि हाँ, हिमाचल हर जगह है यार, हर जगह यहाँ अलग है। यहाँ का शोशा बहुत है। हाँ यहाँ पे लोग शो ऑफ की जिंदगी जीते। हिमाचल का बेस्ट पार्ट बताते हो, चलो कास्टिज्म तो हर जगह है, हाँ बट हिमाचल की जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, बहुत डाउन टू अर्थ है। हमारे पास जितनी जमीन जायदाद हो, हाँ। मतलब बहुत हो, हाँ। बट हमें वो चीज़ नहीं होता कि हमारे पास इतना है या इतनी प्रॉपर्टी आपको हिमाचलियों में नहीं दिखेगी, किसी में भी नहीं दिखेगी। मतलब आप सेब के बागान ले लो, हम करोड़ों में कमाते हैं, बट आप वो चीज़ नहीं देखोगे शोशेबाजी हिमाचली में, जो कि यहाँ Like थार नहीं मिलेगी, निकाल लेते जो यार। यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे शोशेबाजी यहाँ बहुत होती है। शोशेबाजी बहुत है, बंदे के पास कुछ ना हो। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि लाइक तुम किसी डेट पे जा रहे हो, बंदा थार में आ रहा है या इंडावर में आ रहा है या मेरे फॉर्च्यूनर लिए वो मैटर नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। साइकिल पे बैठ के चले मुझे जाओगे कुछ तो? नहीं, अगर उसकी नियत ठीक है ना, आई स्वेयर, हाँ तमीजदार होगा, आइडियोलॉजी अच्छी रखेगा, हाँ। तो पैदल भी आ रहा है मैं चल लूंगी, राधे दिन थार में आके शुक्र आदमी फुकरा आदमी, हाँ प्रॉपर पेट्रियार्कल सोच और लड़कियों को वो करने वाला, ऑब्जेक्टिफाई करने वाला, उससे बेटर है कि पैदल आ जाए बंदा, बस तमीज से बात करे। और मतलब अच्छा, वो तमीज से बात नहीं करते क्या जो आप देखना, वो एक रहती उन्मक्कड़। अच्छा डिड यू डेट है चंडीगढ़? नो नॉट रियली। हाँ। वो था ना एक, अब स्टार्टिंग फेज में जान रहे होते लोगों हाँ। को, उतना ही था, बट उतने में समझ आ गया था कि नहीं नहीं यहाँ के लोग हैं। तो फिर कहाँ के? शिमला के? लड़के तो मैं पता नहीं, आई डोंट, आई एम वेरी अगेंस्ट दिस डेटिंग एंड ऑल। अगेंस्ट यू अगेंस्ट डेटिंग? आई एम अगेंस्ट इट बिकॉज मेरा ये है कि लॉयल बंदा ढूंढना इज अ बिग टास्क। हाँ और जैसा तो जेनजी वाला अब चल पड़ा है ना, हाँ। ये शिप नहीं, बट तुम डेट करोगे उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा ना कि वो यहाँ बंदा। डेटिंग में डेट नहीं, इनको डेटिंग का मतलब नहीं पता, इनको डेटिंग में हाँ, लगता डेटिंग को है। डिफाइन कर दो तुम, तुम्हारे लिए डेटिंग का क्या मेरा मतलब है? डेटिंग का मतलब है आप जा रहे हो बंदे को, मिल रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो, आप एक दूसरे को समझ रहे हो। बेसिकली यहाँ डेट का मतलब नहीं है कि आप पहले दिन गए एक्सपेक्ट समथिंग, है ना। या। तो मैं उसमें से नहीं हूँ। हाँ, पहले दिन में एक्सपेक्टेशन बहुत है यहाँ बहुत है। अच्छा। और इनफैक्ट मैं रही ही लड़कों के ग्रुप में हूँ, तो मैं उनकी आइडियोलॉजी मुझे पता है, क्योंकि वो मेरे सामने बहुत वैसे रहते थे। क्योंकि मैं सीधे साधे सीधे नहीं, वैसे हाँ। हरामी रहते थे। हरामी रहते थे? क्योंकि उनको पता है इसका है नहीं इंटरेस्ट, हाँ। तो ये आपको भाव देगी नहीं। हाँ और तो इसके साथ वैसे रहो जैसे हम हैं। तो वो अच्छा। लिटरली लड़कियों के पीछे क्या बोल सकते हैं, या तो वो तुम्हें लड़का बना दो उन्होंने? हाँ बेसिकली वही है। अच्छा अच्छा। तो मुझे पता है लड़कों की सोच क्या है क्या नहीं है, या वो लड़कियों को किस हिसाब से टारगेट करते हैं, अच्छा। क्या लेके चलते हैं, साइकोलॉजी, वो सब बहुत अच्छे से काफी मालूम है। डीप स्टडी की हुई है मैडम। क्योंकि वो रहते ही ऐसे रहते हैं। मेरी जो छोटी बहन है ना, उसका 15-16 साल का रिलेशनशिप था। तो 16 साल का रिलेशनशिप स्टार्ट कब किया था? स्कूल पैदा होते मेरी शी इज 29 नाउ। अच्छा, तो 13 साल की उम्र से स्टार्ट करते हो? नो हाँ। शी वाज इन 10th स्टैंडर्ड बैक देन। उसका जो हस्बैंड था, अभी तो मतलब ही इज अ सीनियर डॉक्टर, हाँ। बट उस वक्त वो MBBS फर्स्ट ईयर में था। अच्छा, तो ही जब अप्रोच्ड वो 10th में थी? और वो आई? तो वैसा था। तो वो Like 3 years. 18-19 का तो होगा उस टाइम पे, 18 और वो 13-14 साल की थी? नो, हाँ। 10th +1 +2 फर्स्ट ईयर, 3 years गैप लग रहा है। वो सुन कैसा लग रहा है, तो इतना नहीं। अच्छा, तो मुझे पता 3 years gap, but was she below 18? नो। Okay. Oh, yeah. Yeah, dude. ओ या बट वो ये हमारा So, like, tell me about your work. Like, what do you do? आई डू ओके। So, how did you venture into social media marketing and strategy after engineering? Like, how did सो that बेसिकली come क्या था कि कॉलेज टाइम से ना यूज टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स, तो बोर्ड मेंबर रहती थी मैं। about? तो ये झनकार वगैरह भी कराया तुमने? हाँ, झनकार के अपना गूंज होता था हमारा, अच्छा। तो स्पॉन्सरशिप लेके आना, वो सारा तुम करती थी क्या उसमें? पूरा क्या होता था उसमें स्पॉन्सरशिप में? स्पॉन्सरशिप में तो आप जाओ, आपको एक तो हमारे को ग्राउंड लेवल पे बहुत कम पैसा मिलता था, तो अगर आपको फेस्ट कराना तो आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। हाँ, तो मैंने कॉलेज टाइम पे इतने पापड़ बेले हैं ना, मैंने बहुत बताना पापड़ मेरे को इंसिडेंट बताओ। मतलब सुबह 8 बजे निकलते थे, हाँ। और एक जगह गए हुए हैं, हाँ। तो मानो मर्सिडीज की है, या हाँ। आपके है ना ऑडियो की, वहाँ पे मिल रहा है, आप GM को या कुछ मिल रहा हाँ है, हाँ तो वहाँ पे वो कहते थे कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। और विद इन मतलब एंड तक आते वो बोलते थे कि नहीं सर हमारा ये नहीं है। अच्छा। तो हम एक दिन में 6 से 10 स्पॉन्सर्स को मिलते थे, फिर जाके फाइनलाइज एंड में होता था, वो भी कोई 3 या 4। तुम उनको पिच कैसे करते थे? हमारा पूरा ब्रोशर्स होता था, जो पुराने इवेंट्स होते थे ना हाँ। हमारे,
नहीं बट लाइक दे वुड वांट कि लाइक अच्छा इतना फुटफॉल है तो आपका कन्वर्जन रेट रहेगा बेसिकली। अच्छा। और आपको पता है यार मर्सिडीज है वो कितना एक इवेंट में उड़ाते हैं। हाँ। तो आप एक गाड़ी भी वहाँ खड़ी कर दोगे तो आपको पता है कि आएगा ही बंदा। तो पब्लिसिटी तो हो ही रही है ना, तो हम तो उतना स्पॉन्सर्स लेते भी नहीं थे कि लाखों में दे दो आप। हाँ हमें तो चलता कितना था। वैसे लेते थे एक स्पॉन्सर से यूजुअली? अब मुझे ये अपनी का याद है, उसने 1.75 लाख लिए थे। एक स्पॉन्सर से? और हाँ एक SBI था हाँ। कॉलेज में था, उनसे हमने 1 लाख लिया था। वो तो पास ही में था। हाँ फिर FB पे था, हाँ, फीस भराने जाते थे हाँ, हम। उनसे हमने 25,000 लिए थे। 25,000 दिया। हाँ, और टैंजरीन था जैसे हमने 75, उनके 3 टेंट्स लगे थे, ऐसे काफी थे वो तब लेते थे। आई थिंक ओप्पो वीवो के भी काफी वो तो हमें बस बेचारे टेंट दे देते थे। टेंट देके जाते, पैसे नहीं देते थे वो? पैसे नहीं देते थे हम। अरे भाई गलत है ये तो। वो देते थे। डोमिनोज हमेशा परसेंटेज पे रहता था कि अच्छा। इतना परसेंटेज प्रॉफिट। अच्छा तो ये मतलब इस हिसाब से तो फिर जब मैं MS का कैंसिल हो गया मेरा somehow, तो then बट I- तुम्हें मजा तो बहुत आया होगा ना इवेंट्स यार वो तो रहता है क्योंकि college। तुम फोटो भी खिंचा सकते हो तुम सबके साथ पर। यार वो रहा नहीं, वो नहीं रहा? बिजी होती तुम्हें काफी। अच्छा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं ना कि हाँ भाई ये बंदे ने बहुत हेल्प की थी, फिर वो बंदा आ रहा है स्टेज पे उसके साथ फोटो मैं वोटो हो पीछे रही है। होती थी जैसे वो नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पार्टी वाले होते थे। नहीं उनसे दूर रहती थी मैं थोड़ा, हाँ उनसे दूर रहती थी। तो तुम्हें क्योंकि मेरे को ऐसा कई बार लगता था कि ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं यार बंदा नहीं वो हम दूर रहती थी मैं से, क्योंकि मुझे पार्टी मैं कल्चर में नहीं रहती। नहीं जाना था। तो बट उनका भी इन्फ्लुएंस रहता है उसमें। काफी रहता है। कैसे फंड करते हैं वो? फंड तो कुछ नहीं करते हैं अब का पता नहीं है, पर हमारे टाइम पे आज सच कोई फंडिंग नहीं करते थे। बट बेसिकली जैसे कोई बट आर्टिस्ट होता था ना कि ये NSUI का इवेंट है, ये SOI का इवेंट है। वो होता जरूर था, बट उसमें यही हो जाता था कि जैसे आप आर्टिस्ट के पास जा रहे हाँ। हैं, चार्जेस कम नहीं कर रहा है, हाँ। तो इनके लिंक होते थे हमें वो, है ना, हाँ। तो उससे समहाउ की थोड़ा प्रमोशन में हेल्प कर दिया ठीक है, ठीक या है। ये कर दिया, तो वो इसीलिए उनका भी प्रमोशन हो रहा है, ऊपर से वो मतलब जुगाड़ बिठा जुगाड़ देते थे। बेसिकली क्या कहेंगे आप, ये बार्टर सिस्टम हो जाता समझ गया कि मैं जानता हूँ इस बंदे को ही थोड़ा है। हाँ वही रहता था। और बाकी Connection बन फंडिंग जाए। कुछ नहीं करते फंडिंग नहीं थे। करते थे। बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे। ठीक है मैं भी और नहीं बोल सकता। जो लाया जाता था वो भी पता नहीं कहाँ जाता था, कई बार ऐसे भी अच्छा ऐसा भी होता होता है। था। तो यही है। ट्रेजरीज कौन संभालता था? और अगर तुम्हारे पास फंडिंग आ रही है तो उसका लेखा जोखा कौन देखता वो है? स्कूल मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स है जो असाइन होते हैं, Okay. तो आपको चेक तक देना होता है। ओके ऐसा होता था। अच्छा। तो ये क्या करते थे, नो हाँ, बता दो कोई बता दो। ऑन द कैमरा नॉट से अभी तो तुम हो भी नहीं कॉलेज में, क्या करोगे? नहीं यूनिवर्सिटी में अभी भी है, मेरे प्रोफेसर्स हैं अच्छा। और बेसिकली जो थे हेड वो तो होंगे। सर आई लव यू। हाँ, पंगे ठीक नहीं है, ले ठीक है, सकती मैं, ठीक है। बट हाँ रहता है तो मतलब सब कुछ चलता है होता है। सब चलते हैं। Is it okay if this goes on YouTube? Yeah, sure. Thank you.